So hey guys, in this video we are going to start with the maxillary molars. इसके पहले हमने प्रीमोलर्स कैनाइन सारे कंप्लीट कर लिए हैं. सो लेट्स स्ट्रेट ड्राइव इनटू द वीडियो. तो स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन फीचर्स ऑफ द molars. Okay, so now you can see the maxillary arch. So here we can locate our the maxillary molars. ये देखिए, this is our first maxillary molar, second, and it is our third. Okay, so we can see it is our first premolar, second premolar, it is our canine, and they are the incisors. Okay, so to study anatomy of tooth, the basic requirement is the observation. ठीक है, हम जितना अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, it will help us to memorize it and to remember it. Okay, so let's discuss about the basic features. Okay, so here we can see that look at the arch from below. यहाँ से हम easily बोल सकते हैं कि the maxillary जो molars हैं, they are quite large in comparison to the other tooth. Okay, and we can observe also the point that जिस तरह से हम posteriorly move कर रहे हैं, वैसे ही जो maxillary molars की size है वो भी decrease हो रही है. Like we can see, ये जो first molar है, it is our second molar, it is our third molar. First molar is quite large than the second molar, and second molar is quite large than the third molar. So when we move posteriorly, we can see a decrement in the size of the molars. Okay, here we can see the first molar. एक basic feature जो देख लीजिए, first molar जो है वो पूरे arch में सबसे बड़ा tooth है. Maxillary first molar is the largest tooth in the maxilla. Okay, and there is also a important point to remember that which one is the longest tooth. ये तो हमारा largest हो गया maxillary first molar, but the longest is our canine. We can see it like that कि ये देखो, अगर हम लेंथ वाइज देखें, मैक्सिलरी कैनाइन की लेंथ देखिए और ये हमारी मोलर की. ओके, हम इजीली बोल सकते हैं कि जो कैनाइन है उसकी लेंथ ज़्यादा है. ओके, सो द कैनाइन इज लॉन्गेस्ट and the first molar is largest. Okay, these are the basic features. और basic feature अगर हम observe करें तो it would be कि like molars के basically 3 roots है ना, 2 बक्कल. अगर मैं एक टूथ को सेपरेट करूँ, we can see that the जो first molar है इसके 2 roots हैं. These are the buccal roots. We will discuss about the aspects. These are the buccal roots and one of it is ये देखिए, ये एक lingual. Okay, यहाँ पे हमारे पास 4 cusp हैं इसके. Okay, 1 2 3 4. We will name them also. Okay, and there is also a one more cusp, that is cusp of Carabelli, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, we can see it. ये देखिए. Okay, we will talk about it also. So this is the basic features of maxillary molars. Maxillary molars की अगर हम basic वो देखें कि लाइक ये क्या फंक्शन क्या होता है इनका. देखिए, पोस्टीरियरली जितने भी टूथ्स हैं ना, दे बेसिकली फंक्शन एज ग्राइंडिंग द फूड. ओके, इट ऑल्सो सपोर्ट द मसल्स ऑफ mastication and it, okay, these are the basic features of it. So let's start with the buccal aspect of the first maxillary molar. Okay, देखो बस buccal aspect में अगर हम observe करें, we can see the 3 roots. Okay, buccal aspects means the aspect which is toward the buccal cavity. Okay, look, these are our 2 roots है ना, these are our lingual buccal roots. Okay, and the root which we can see the behind of them, this root, this is our lingual, this is our lingual root. Okay, देखो
बक्कल एस्पेक्ट में हमको सामने दो कस्प दिख रहे हैं. ओके, टू नेम द टू कस्प विच वी कैन सी फ्रॉम द बक्कल एस्पेक्ट, उसके लिए सबसे पहले हमको जानना है कि मीजियल एंड डिस्टल एस्पेक्ट हमको डिसाइड करना है. ठीक है. ओके, एंड हाउ डू वी डिसाइड दैट. देखो, हमें ऑब्जर्व करना है रूट की टिल्ट. ओके, देखो रूट जिस तरफ टिल्टेड है वो हो जाएगा हमारा डिस्टल. ओके, ऑलवेज. एंड दिस वन वुड बी द मीजियल. ओके, as this is our buccal, these two are buccal cusp, and this one, as it is toward the mesial, it is our mesio-buccal cusp, and this one would be disto-buccal cusp. Okay, very easy. We can see the cervical line. Okay, we can see कि cervical line जो है वो properly straight नहीं है, it is slightly convex towards the root. Okay, okay. Here we can see okay, हम इसको कहेंगे मीजियल आउटलाइन, और ये जो आउटलाइन है दिस वुड बी आवर डिस्टल आउटलाइन. ओके, ओके. सो जब मीजियोबक्कल कस्प है इसके दो स्लोप्स हैं, ये देखो, दिस वुड बी आवर डिस्टल स्लोप, एंड ये जो होगा ये होगा हमारा मीजियल स्लोप. उसी तरीके से जो डिस्टोबक्कल कस्प है उसका ये वाला स्लोप होगा जो कि ये मीजियल की तरफ है, तो मीजियल स्लोप, और ये हो जाएगा हमारा डिस्टल स्लोप. ओके, मीजियोबक्कल कस्प में अगर हम ध्यान दें तो ये जो स्लोप जो एक एंगल बना रहा है इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, इट इज़ ऑब्ट्यूज. एंड डिस्टोबक्कल कस्प का जो ये स्लोप है, these two slopes make a angle which is almost 90 degree. Okay, so this is also a feature, and there is we can see एक groove है. okay, और ये groove कहाँ पे, बक्कल साइड में, तो it is बक्को डेवलपमेंटल groove. this is our बक्को डेवलपमेंटल groove. very easy. और एक चीज़ अगर हम स्लाइटली ऑब्जर्व करें कि ये देखो इनकी जो कस्प लेंथ में डिफरेंस क्या है. ठीक है, ये देखो मीजियोबक्कल कस्प जो है उसकी लेंथ स्लाइटली इट इज़ मोर देन द डिस्टोबक्कल कस्प विच इज़ नॉर्मली हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. ओके, दिस वन इज़ ऑल्सो अ फीचर. ओके, वी कैन सी द अदर कस्प ऑल्सो बक्कल एस्पेक्ट से, है ना. ओके, वी कैन ईजिली सी, अगर हम इस क्राउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, दिस पार्ट वुड बी कॉल्ड द इंसाइजल थर्ड. okay, this part would call the incisal third. ये होगा हमारा middle third, and it would be our cervical third. okay, अगर हम मीजियल आउटलाइन की बात करें, ये हमारा मीजियल आउटलाइन है दिस वन, और ये हमारा डिस्टल आउटलाइन है. क्राउन में जो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया है, मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया, ये टोटली लाई करता है जंक्शन पे, किसके, इंसाइजल थर्ड और मिडल थर्ड के जंक्शन पे. हियर वी कैन सी द क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर क्लियरली. ओके, और अगर हम डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया की बात करें तो वो कहाँ दिखेगा हमको, मिडल ऑफ द मिडल थर्ड. हियर मिडल ऑफ द मिडल थर्ड. ओके, तो व्हाट आर द कॉन्टैक्ट एरिया, तुमको पता ही है क्या है. जो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया है मतलब जहाँ पे जो इसके बाद वाला और पहले वाला जो टूथ है वो इसके कांटेक्ट में आएगा, और जो डिस्टल कांटेक्ट एरिया है वो उसके बाद वाले टूथ के कांटेक्ट में जो आएगा. ओके, नाउ वी नो द पोजीशंस ऑफ द कांटेक्ट एरिया. मीजियल कांटेक्ट एरिया कहाँ पे लाई करता है, एट द जंक्शन ऑफ मिडल एंड इंसाइजल थर्ड, और जो डिस्टल कांटेक्ट एरिया है वो कहाँ लाई करता है, मिडल ऑफ द मिडल थर्ड. वी कैन सी इट क्लियरली. नाउ डील विद द lingual aspect of the maxillary tooth, maxillary molar. ओके, सो इसका सबसे पहले ही फीचर है कि जो लिंगुअल रूट है इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द 3 रूट्स. ओके, जो लिंगुअल रूट है इट इज़ लॉन्गेस्ट. ओके, अब इसके बाद अगर सर्वाइकल
लाइन की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो डिविएशन फ्रॉम द पाथ, ओके। और अगर हम देखें डेवलपमेंटल ग्रूव, ठीक है, क्राउन पे जो डेवलपमेंटल ग्रूव है ये देखो, इट ऑलमोस्ट स्टार्ट फ्रॉम द मिडल एंड टर्न्स टूवर्ड द डिस्टल। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज डिस्टल एस्पेक्ट और ये जो होगा हमारा मीजियल एस्पेक्ट, ओके। सो these are the two cusps, okay. We know about the contact area, so these are the cusp। ये देखो, ये जो हमारा cusp है ये क्या होगा, डिस्टोलिंगुअल कस्प, और ये होगा हमारा मीजियोलिंगुअल कस्प, ठीक है। ऑब्वियसली हमको यहाँ से दिख रहा है कि जो मीजियोलिंगुअल कस्प है वो बड़ा है डिस्टोलिंगुअल कस्प से, बल्कि मीजियोलिंगुअल कस्प जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट कस्प इन द मोलर, इन द मैक्सिलरी मोलर, ओके। देखो अब जो मीजियोलिंगुअल कस्प है ना, इसमें हमको एक इरेगुलर डेवलपमेंटल ग्रूव भी दिख रहा है ये, ठीक है। जिस इरेगुलर डेवलपमेंटल ग्रूव की वजह से एक और कस्प का क्रिएशन हो रहा है, जिस कस्प का नाम है कस्प ऑफ कैरिबेलाई। क्या है, कस्प ऑफ कैरिबेलाई, ओके, ठीक है। सो देयर आर टोटल फाइव कस्प, मीजियोलिंगुअल कस्प, डिस्टोलिंगुअल कस्प, बको distal and bucco-mesial cusp, okay. And there is the fifth cusp is cusp of Caribelli. It is our fifth cusp, okay, which is formed by the irregular developmental groove, okay. So जो mesiolingual cusp है ना, वो lingual aspect का almost 3/5, okay, 3/5 कवर करता है, और जो डिस्टोलिंगुअल cusp है वो 2/5, okay. So we are done with the lingual aspect. Then we will move toward the let's start with the mesial aspect of the maxillary first molar. So पहला क्वेश्चन है कि how will we decide that कौन सा पार्ट mesial और कौन सा distal है. So the basic easy observation है, we can see, हमने पहले वीडियो में बात करी थी, यहाँ पे हमको easily दिख जाता है cusp of Caribelli, okay. तो cusp of Caribelli is present on the mesiolingual cusp, okay. नाउ वी नो कि कौन सा रूट कौन सा, यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि बक्कल और लिंगवल कौन सा है. हमको पता है ये हमारी लिंगवल रूट है और ये हमारे बक्कल रूट है, तो ऑब्वियसली दिस साइड वुड बी बक्कल और ये लिंगवल साइड. ये कस्प क्या है हमारा, मीजियो लिंगवल कस्प, और ये क्या है, बक्को लिंगवल कस्प, ठीक है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये देखो ये कौन सा है, ये मीजियो बक्कल रूट है ना. इट इज़ आवर मीजियो बक्कल रूट. क्या हमको यहाँ पे डिस्टो बक्कल रूट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि मीजियो बक्कल रूट की जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो ये एक और डिसाइडिंग फीचर हो गया मीजियल एस्पेक्ट के लिए कि हमको इस तरफ से सिर्फ मीजियल रूट ही दिखती है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेस्ट ऑफ सर्वाइकल लाइन. सर्वाइकल लाइन देखो ऑक्लूजली टिल्टेड है ना. ओके, अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, वी नो कि फर्स्ट वन इज सर्वाइकल थर्ड. ओके, इसके बाद वाला जो है ये आ जाता है मिडल थर्ड. हम इस चीज़ के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं. और दिस वन इज आवर ऑक्लूजल थर्ड. ओके, now let's talk about the crest of curvature on the buccal outline and lingual outline. okay, lingual outline में अगर हम crest of curvature देखें, देखो तो हमको crest of curvature कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ, जो कि है ये देखो इस पोर्शन में, दिस मिडल थर्ड में है ना. ये हो जाएगा हमारा crest of curvature in लिंगुअल एस्पेक्ट. ओके, और अगर इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर हमको याद हो, ये लाई करता है, दिस पार्ट लाई करता है सर्वाइकल थर्ड में. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, ये देखो मीजियो
मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव है जो कि बहुत थोड़ा सा है. ओके, देयर इज अ वेरी लाइट मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव. ओके, नाउ हाउ डू वी मेजर द बक्कोलिंगुअल कस्प लेंथ. कस्प या फिर बक्कोलिंगुअल जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, कैसा करते हैं. फ्रॉम द बक्कल कस्प टिप टू द लिंगुअल कस्प टिप. देखो ये हो जाएगा हमारा लिंगुअल कस्प टिप और ये हो जाएगा हमारा बक्कल कस्प टिप. इन दोनों के बीच की जो लेंथ है ना, इसे हम कहते हैं बक्कोलिंगुअल डायमेंशन. दिस इज आवर बक्कोलिंगुअल डायमेंशन. ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट. सो नाउ वी ऑल्सो नो दैट अगर हमको याद हो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया है ना, मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया कहाँ लाई करता था. इट ऑलमोस्ट लाइज ऑन द मिडल थर्ड. ओके, हियर दिस इज आवर मीजियल, दिस इज आवर मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया, दिस इज आवर मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टल एस्पेक्ट नाउ. ओके, देखो डिस्टल एस्पेक्ट में हमको क्या होता है, मेन फीचर जो है हमको यहाँ पे तीनों रूट्स विजिबल हैं. ये देखो, ये अगर ये डिस्टल है, दिस इज आवर बक्कल साइड, दिस इज आवर लिंगुअल, है ना. तो अगर ये हम डिस्टल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं तो दिस रूट वुड बी आवर बक्को डिस्टल रूट. ओके, देखो यहाँ पे हमको मीजियो बक्कल रूट भी दिख रहा है ना, स्लाइट ऑफ, और ये हमारा लिंगुअल रूट. तो मोस्टली 3 रूट्स आर विजिबल. अगर इसके सर्वाइकल लाइन के बारे में बात करें, इट इज़ लेस कर्व्ड, है ना, इट इज़ लेस कर्व्ड देन द मीजियल साइड. मीजियल साइड का जो सर्वाइकल लाइन है इट इज़ मोर कर्व्ड. ओके, यहाँ पे जो देख रहे हो डिस्टल डेवलपमेंटल ग्रूव है, इट इज़ ऑल्सो मोर स्मॉल देन द मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव. यहाँ पे हमको लगभग ऑक्लूजल सरफेस थोड़ा बहुत दिख ही जाता है. ओके, ये देखो यहाँ पे जो ये हमको दिख रही है ना, ये क्या है, इट इज़ आवर सर्वाइकल रिज. अगर हम बक्कल एस्पेक्ट को अगर इस तरफ से करें, टर्न करें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये सर्वाइकल रिज जो है, अगर इसको हम बक्कल या फिर डिस्टल साइड से मीजियल या फिर डिस्टल साइड से देखें तो हमको ये सर्वाइकल रिज दिख जाएगी. मतलब जस्ट बीनीथ द सर्वाइकल लाइन देयर इज अ प्रोट्यूबरेंस, है ना, रिज. ओके, ऑलमोस्ट बाकी जो फीचर है सिमिलर है टू द मीजियल साइड ऑफ द टूथ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑक्लूजल सरफेस. सो नाउ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है ऑक्लूजल सरफेस. ठीक है, जितनी भी मुश्किल होती है वो हमें ऑक्लूजल सरफेस में होती है टू डिफाइन ऑल द रिजेस, ऑल द फोसाज, है ना, ऑल द ग्रूव्स. तो वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द ऑक्लूजल पार्ट. ओके, इसे हम जितना इजीली हो सके समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सबसे पहला हमें पॉइंट है कि हमें डिसाइड करना है मीजियल, डिस्टल, बक्कल एंड लिंगुअल. ओके, देखो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए सबसे मेन फीचर हो जाएगा कस्प ऑफ कैरेबलाई. अगर हमें कस्प ऑफ कैरेबलाई मिल जाएगा तो हम बेसिकली चारों एस्पेक्ट को ईजिली कवर कर सकते हैं. ये देखो अ लिटिल ऑफ, ये देखो कस्प ऑफ कैरेबलाई हमें दिख जाएगा, है ना. ओके, ये जो कस्प ऑफ कैरेबलाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीजियो लिंगुअल कस्प. मतलब दिस कस्प इज आवर मीजियो लिंगुअल कस्प. ओके, अगर ये मीजियो लिंगुअल कस्प है तो ये जो है ये हमारा होगा लिंगुअल एस्पेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा बक्कल, ये हो जाएगा हमारा मीजियल, और ये हो जाएगा हमारा डिस्टल. ओके, हम देखो अब इस तरीके से हम सारे कस्प की नेमिंग कर सकते हैं. ये कौन सी कस्प होगी, डिस्टोलिंगुअल कस्प. ये कौन सा कस्प होगा, बक्को डिस्टल कस्प. वेरी गुड. और ये कौन सा कस्प होगा, मीजियो बक्कल कस्प. ओके, नाउ वी नो द ऑल द 4 कस्प. ये देखो ये हमारा कस्प ऑफ कैरेबलाई, जिसके बेसिस पे हमने पूरे जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो डिसाइड करे हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रूव्स. आई विल चेंज द कलर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ग्रूव. ये हमको पता है ये कौन सी ग्रूव है, दिस इज आवर बक्कल डेवलपमेंटल ग्रूव. ये हमें याद है लिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव, है ना. ये देखो ये मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव और ये डिस्टल डेवलपमेंटल ग्रूव, जो कि हमने सारे एस्पेक्ट्स में कवर किया था. एंड और एक ग्रूव है, ये देखो ये जो बीच से जा रहा है ट्रांसवर्सली, ये है ट्रांसवर्स ग्रूव.
एंड देखो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 ग्रुप्स. वन मोर ग्रुप इज द विच मेक्स द कस्प ऑफ कैरेबेलाई, है ना. हमने पढ़ा था कि इरेगुलर डेवलपमेंटल ग्रूव जो होती है वो फॉर्म करती है कस्प ऑफ कैरेबेलाई. तो देयर आर टोटल 6 ग्रूव्स. देयर आर 6 ग्रूव. ओके, देयर आर 6 ग्रूव्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ रिज. ओके, एक रिज होता है. देखो ये देख रहे हैं हम जो मीजियोलिंगुअल कस्प है, दिस एंड बक्को डिस्टल कस्प कि इनकी जो ये रिज है ये दोनों ऑब्लिकली मीट करते हैं एंड दे फॉर्म अ ऑब्लिक रिज. दे फॉर्म अ ऑब्लिक रिज. ओके, दे फॉर्म अ ऑब्लिक रिज. ओके, अब हम डिसाइड करते हैं कि इसमें हमें देखने हैं फोसाज वगैरह. ओके, लेट्स चेंज द कलर. ओके, देर आर बेसिकली 4 फोसाज. ओके, देर आर बेसिकली 4 फोसाज. एक फोसा होगा जो कि होगा मेजर सेंट्रल फोसा. ठीक है, मेजर सेंट्रल फोसा. ये देखो इट लाइज हियर. ओके, ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे. दिस इज आवर मेजर सेंट्रल फोसा. अब इस ऑब्लिक रिज के डिस्टली एक फोसा प्रेजेंट होगा, है ना. ठीक है ना, इसे हम कहेंगे डिस्टल फोसा. दिस वन डिस्टल फोसा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डिस्टली टू द ऑब्लिक रिज. ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल फोसा, ये हो जाएगा हमारा डिस्टल फोसा. वेरी गुड. देयर आर 2 मोर फोसाज. लुक, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फोसा प्रेजेंट है. किस तरफ? मीजियल साइड की तरफ. तो इसकी नेमिंग बड़ी इजी है, मीजियल ट्रायंगुलर फोसा. एंड देयर इज वन मोर फोसा हियर जिसका नाम हो जाएगा डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा. वेरी गुड. सो हमने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया इसका. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिट्स. ओके, देयर आर 3 पिट्स जिसकी नेमिंग हम करते हैं. देखो यहाँ पे ये जो पिट है ये हो जाएगी सेंट्रल पिट. ठीक है, यहाँ एक पिट होगी जो कि हो जाएगी डिस्टल पिट, और यहाँ पे एक पिट होगी जो कि नाम है मीजियल पिट. पिट कुछ नहीं है, बेसिकली पॉइंट पे एक ग्रूव है. ओके, दीज आर द 3 पिट्स, 6 grooves, 4 fossas. And now we cover the occlusal aspect. It is very easy to determine. Thank you guys. If you like the video, share it, subscribe to my channel.